आज आइए हम माता का सफेद लहू, माता के दूध का महत्व के बारे में समझें। La leche materna, la sangre blanca de mamá. Hoy comprenderemos la importancia de la leche materna, que es conocida como la sangre blanca de mamá. En सबसे primer lugar, पहले माता का दूध माता la और lactancia बच्चे के बीच materna एक मजबूत genera और un विशेष fuerte संबंध बनाता है। un vínculo muy especial, una relación muy especial entre la madre y el hijo. यह La leche पोषक तत्वों का materna एक मूलभूत también स्रोत es una भी है। fuente fundamental de nutrientes. La माता leche के दूध materna को también सबसे es अधिक conocida como el पौष्टिक भोजन माना alimento जाता है, más जो nutritivo. संतान के सर्वोत्तम विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य की Que गारंटी asegura देता है। un óptimo crecimiento, desarrollo y en especial la salud del recién nacido o del bebé. क्या ¿Saben आप जानते ustedes हैं कि cómo माता se के llama द्वारा la उत्पादित primera प्रथम दूध leche को क्या que कहते हैं? genera el organismo de la madre? क्या ¿Tendrán किसी alguna को idea पता है? ustedes? La माता primera द्वारा leche que स्रावित genera और mamá प्रदान किया गया पहला o स्तन que दूध permite कोलोस्ट्रम desarrollar कहलाता mamá है। es el calostro. क्या ¿Saben आप ustedes जानते qué cosa हैं es कि el कोलोस्ट्रम calostro? का कार्य क्या है? El यह एक calostro प्राकृतिक es टीके की तरह como है। una vacuna natural. El कोलोस्ट्रम माता calostro द्वारा प्रदान की जाने es वाली como प्राकृतिक una दवा की तरह है medicina और यह natural नवजात शिशु que की la रक्षा करता madre है। genera para poder brindar al recién nacido. Es conocido कोलोस्ट्रम como एक un चमत्कारिक भोजन है। alimento यह मुफ्त milagroso, दवा es की तरह है। conocido como una medicina gratis. El कोलोस्ट्रम की एक calostro खास tiene विशेषता है। una característica muy especial. Si जब आप ustedes ven la तस्वीर को imagen, देखते हैं तो pueden आप देख confirmar सकते हैं कि que el कोलोस्ट्रम का रंग calostro tiene अनोखा un है। color muy especial. ¿Qué color कोलोस्ट्रम tiene el किस रंग का calostro? होता ¿Pueden ver la है? imagen? क्या आप देख सकते हैं? El यह calostro पीला tiene है। el color amarillo. ¿Por qué कोलोस्ट्रम razón el पीला calostro क्यों tiene होता el है? color amarillo? Los विशेषज्ञ इसे especialistas माताओं का तरल सोना llaman al कहते हैं। calostro como el oro líquido de la madre. En दूसरे otras शब्दों palabras, में हमारे cada uno de शरीर में सोना nosotros है। estamos compuestos de oro. हम Somos बहुत muy भाग्यशाली afortunados हैं क्योंकि porque जब desde हम बच्चे pequeños थे तो हमें hemos माताओं से recibido बहुत ही el विशेष oro सोना muy मिला। especial de nuestras madres. La leche माता के materna दूध में también महत्वपूर्ण तत्व contiene होते algunas हैं। propiedades muy importantes. La माता leche का materna दूध es पोषक rica en तत्वों, nutrientes, खनिजों, एंजाइमों en और लिपिड से minerales, भरपूर en होता है। enzimas, en lípidos. Tiene माता के propiedades दूध muy में एक especiales. विशेष पदार्थ भी En होता है। especial, माता la के leche दूध materna में también उच्च स्तर tiene के altos प्रोबायोटिक्स होते हैं valores de जो शिशु के probióticos पाचन तंत्र को que विकसित करने में permiten मदद करते el हैं और यह desarrollo ऊतक निर्माण में भी del मदद करता है। sistema digestivo infantil, así como permite el desarrollo de los tejidos en el recién nacido. Otras माता के propiedades दूध que में también एक tiene la अन्य leche पदार्थ materna es केंद्रीय que तंत्रिका तंत्र के विकास में permite el मदद करता desarrollo है del sistema nervioso central. Y en और यह especial बच्चे के también बौद्धिक विकास permite को el बढ़ावा desarrollo देता है। intelectual del niño. Por lo सामान्य तौर general, पर casi स्तनपान los करने niños वाले son muy बच्चे बुद्धिमान inteligentes होते हैं। porque reciben la leche de mamá. माता La के leche दूध को materna es जीवित considerada भोजन un माना जाता alimento है vivo क्योंकि इसमें porque माता का tiene un आनुवंशिक घटक componente होता है। genético de la madre. ऐसे Existen मामले también हैं casos en los जिनमें माताएं cuales स्तनपान कराने के las बजाय madres कृत्रिम दूध या optan फार्मूला por el खिलाना uso चुनती हैं। de leche artificial o la fórmula láctea. El कृत्रिम uso दूध de के कुछ estos जोखिम हो productos सकते हैं। tienden a asumir algunos riesgos, como por कृत्रिम दूध ejemplo, या फार्मूला la खिलाने leche से artificial नवजात o la शिशु fórmula में प्रोटीन láctea की अधिक मात्रा permiten हो los सकती recién है, nacidos, ya que estos productos están llenos de muchas proteínas. En la mayoría de los casos, los recién nacidos, al recibir estos productos, जिसके कारण suelen शिशु को टाइप tener, 2 por मधुमेह ejemplo, और desde muy मोटापे का pequeños, खतरा हो सकता है। la enfermedad de la diabetes tipo 2 o la obesidad. La कृत्रिम leche दूध में artificial प्रतिरक्षात्मक गुण no नहीं tiene होते las हैं जो propiedades स्तन के दूध में होते हैं inmunológicas de la leche materna. Así और यह también, मुश्किल la से leche पचता है, artificial, इसलिए la अधिकांश digestión बच्चे पेट के es muy दर्द या pesada. कब्ज से पीड़ित होते Casi en la हैं। mayoría de los casos, los bebés sufren de cólicos o de estreñimiento. El कोलोस्ट्रम में calostro एक बहुत ही está विशेष compuesto de पदार्थ algo होता muy है especial, जो इम्यूनोग्लोबुलिन de ए la है। inmunoglobulina A. ¿Qué फिर cosa es la इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या inmunoglobulina A? है? Son यह los माता के शरीर anticuerpos, में son las उत्पादित एक defensas प्रतिरक्षा que एंटीबॉडी el है organismo जो de la स्तन के madre दूध के माध्यम elabora से बच्चे को y se पारित la किया जाता transmite al है। bebé. Por उदाहरण ejemplo, के लिए यदि si माता durante la vida de निमोनिया, la madre चिकनपॉक्स या la mamá ha कंठमाला sufrido जैसी de कुछ algunas बीमारियों से enfermedades, por पीड़ित रही है तो ejemplo, la कोलोस्ट्रम में neumonía, इम्यूनोग्लोबुलिन por ए घटक ejemplo, क्या la है? varicela, por ejemplo, la papera,
Entonces, ¿qué cosa hace la inmunoglobulina A que está dentro del calostro? माता के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विशिष्ट एंटीबॉडी पैदा करती है और उन बीमारियों के विरुद्ध कार्य करती है। साथ ही प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बच्चे तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में कोलोस्ट्रम स्तन के दूध के द्वारा शिशु इन बीमारियों से 100% सुरक्षित रहता है। तस्वीर को देखिए। गर्भावस्था के दौरान माता बच्चे को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। बच्चे को माता के गर्भ से नाल के माध्यम से रक्त प्राप्त होता है। यह प्रणाली बच्चे के जन्म के बाद भी दोहराई जाती है। बच्चे के जन्म के बाद माता बच्चे को पोषक तत्वों की आपूर्ति करना जारी रखती है, लेकिन यह लाल रंग के लहू के माध्यम से नहीं होता है। लहू का रंग बदल जाता है। माता बच्चे को सफेद लहू पिलाती है, जो स्तन का दूध है। माता के दूध को माता का सफेद लहू क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वही घटक होते हैं जो माता के लहू में होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक बच्चा लगातार स्तन के सफेद दूध के माध्यम से माता का लहू प्राप्त करता है। बच्चा स्तन के दूध के माध्यम से घटकों को 100% अवशोषित करता है। और भी है, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माताओं को कम से कम 6 महीने या 2 साल तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 साल तक तंत्रिका तंत्र का पूर्ण विकास होता है। माता का दूध बच्चे को सभी बीमारियों से बचाता है। भले ही परिवार के सदस्य बीमारी से ग्रस्त हों, लेकिन जन्म से स्तनपान करने वाले शिशुओं में आमतौर पर बीमार होने का जोखिम कम होता है। यह काफी हद तक माता के दूध के कारण है। माता के दूध के महत्व के माध्यम से हम आत्मिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ सकते हैं। यह एक आत्मिक मुद्दा है जिसे हमें महसूस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 में इस प्रकार लिखा, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजें हमें उनकी इच्छा दिखाती हैं। परमेश्वर द्वारा बनाई गई चीजों में सांसारिक परिवार प्रणाली भी शामिल है। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 के अनुसार हम समझ सकते हैं कि सांसारिक व्यवस्थाएं स्वर्गीय चीजों का एक प्रतिरूप और छाया हैं। जब हम इन वचनों को देखते हैं तो जैसे एक शारीरिक माता एक बच्चे को जीवन देती है, उन्हें पौष्टिक माता का दूध पिलाती है, जिससे उन्हें सर्वोत्तम परिस्थितियों में बढ़ने, विकसित होने और स्वस्थ रहने की अनुमति मिलती है, वैसे ही क्या आपको लगता है कि एक स्वर्गीय माता भी है? क्या कोई स्वर्गीय माता होनी चाहिए जो हमें आत्मिक जीवन देती है और हमें उद्धार की ओर ले जाने के लिए आत्मिक स्तन दूध प्रदान करती है, या नहीं होनी चाहिए? गलातियों अध्याय 4 आयत 26 कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बाइबल स्वर्गीय माता अर्थात आत्मिक माता के अस्तित्व की गवाही देती है। परमेश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बच्चे अपनी माताओं से जीवन प्राप्त करते हैं, और जब वे जन्म के बाद से कम 6 महीने या 2 साल तक स्तनपान करते हैं तो वे बढ़ और विकसित हो सकते हैं। तब क्या हमारे लिए आत्मिक स्तन दूध होना महत्वपूर्ण है या नहीं है? चूंकि स्वर्गीय माता हैं, इसलिए आत्मिक रूप से स्तन दूध पीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर हमें पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 2 के वचनों के माध्यम से सलाह देते हैं। इसमें कहा गया है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
आत्मिक दूध हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ने देता है। इसलिए इस युग में आत्मिक स्तन दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अंतिम युग में कौन हमें आत्मिक जीवन देता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें आत्मिक दूध कौन पिलाता है? बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार इन अंतिम दिनों में स्वर्गीय माता प्रकट होंगी। स्वर्गीय माता अनंत जीवन देने आएंगी। सारी मानव जाति को उद्धार की ओर ले जाने के लिए स्वर्गीय माता हमें आत्मिक माता का दूध देने आई हैं। आइए इस बारे में पुष्टि करने के लिए यशायाह अध्याय 66 आयत 10 पर जाएं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। बाइबल समझाती है कि जैसे एक शारीरिक माता होती है, वैसे ही स्वर्गीय माता भी होती है। बच्चा शारीरिक माता के माध्यम से जीवन प्राप्त करता है और स्तन का दूध प्राप्त करता है। इस अंतिम युग में बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार जो लोग उद्धार की खोज में हैं, उन्हें स्वर्गीय यरूशलेम माता को प्राप्त करना चाहिए और उद्धार की ओर ले जाने वाले आत्मिक दूध का सेवन करना चाहिए। तब हम स्वर्गीय माता से कहाँ मिल सकते हैं? आज कई चर्च और विभिन्न सिद्धांत हैं। हम केवल वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में स्वर्गीय माता को खोज सकते हैं। केवल चर्च ऑफ गॉड में स्वर्गीय माता से मिलना क्यों संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्च ऑफ गॉड दुनिया का एकमात्र चर्च है जो बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार माता परमेश्वर की गवाही देता है। इसलिए हमें इस तथ्य पर गर्व करना चाहिए कि हम बाइबल में लिखे गए स्थान पर हैं, जहां हम स्वर्गीय माता और आत्मिक स्तन दूध प्राप्त कर सकते हैं, जो उद्धार की ओर ले जाता है और स्वर्ग में लौट सकते हैं। इसके साथ मैं इस प्रस्तुति को समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक बार फिर मसीह आन सांग होंग और स्वर्गीय यरूशलेम माता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, हमारे साथ रहते हैं और हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर मार्गदर्शित करते हैं। ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।